And hi, I am live again. It's Sunday, 6 o'clock. I see someone's joined in. Preet Singh, hi. Hi, Yellow Couch Photography. Um, okay, we'll wait for some people to join in, and I'm also waiting for our guest today, uh, who is Kuldeep Ruhil, who is an actor, writer, director. Tiny Balcony, Janvi Asthana. Hi guys, hi everybody. We are waiting for Kuldeep, who is our guest for today on The Leap of Faith with Ashwini. We'll see. I think Kuldeep is now, right now, sitting in this beautiful village in Maharashtra, and I believe he's writing some exciting stuff for us. तो देखते हैं, अभी तक तो ज्वाइन किया नहीं है. Hi Vinny. Hello Pooja. I'm waiting for my guest, Ankush. And okay, so family is here too. They're saying hi. Great. I'm hoping Kuldeep can figure. And Kuldeep Rohil has joined. Yay, Kuldeep. I'm going to figure out how to send you a request. And there you. I'm waiting for you to accept my request. On the leap of faith. Hello. Hi, Hi Kuldeep. How are you? I'm good, Ashwini. How are you doing? गुड गुड. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है, एकदम बढ़िया. ओके, ऑसम, lovely. So this amazing setting behind, I think Yeah, fans of yours, by the way, is waiting for you to join. तो कोई अभी बोला था सर को जल्दी ज्वाइन करने बोलो मैं. sir. तो Oh, please don't call me sir. Kuldeep is just fine. so first of all, let me say thank you so much to you for Arey, please. agreeing to do this. And I think I also want to say thank you for you to for being so encouraging, because I think you were one of the first few people who actually came up to me and said that you do a good job with interviews, and you kind of encouraged me and helped me to sort of just Yes, because take. I saw your interviews on IMDb and it was really good because the kind of question people are asking to the actors or directors or writers बड़े मतलब डरने वाले होते हैं. ऐसा बताइए कैसा लगा था उस दिन. सुहास, हाय कुलदीप, हाय सुहास, हाउ आर यू डूइंग. तो उनसे क्राफ्ट के बारे में या उस चीज के बारे में कोई नहीं पूछता. यहाँ वहाँ की बातें ऐसी बहुत करते हैं. सो मुझे जब भी मैं आपका इंटरव्यू देखता था मुझे लगता है यार शी इज रियली गुड. Was not for compliments, but I genuinely wanted to say thank you to you, because you really pushed me to take this leap of faith. क्योंकि ये मेरे लिए भी एक तरह का leap of faith ही है कि चलो करते हैं, शुरू तो करें. So गुड before, इवनिंग प्रीत सिंह. गुड इवनिंग. प्रीत इज जस्ट सेइंग गुड इवनिंग. हाय. so anyway, let me just welcome you, and let me tell everyone who's watching. Thank you all also for. Kuldeep is an actor, writer, director, or model. First thing I knew about model, and before you did Glad Rags, Mega Model यस. Hunt. यस आई डिड या. तब से I know of you, and then later of course each other through my husband, and we've been friends there. So looking at your journey, मुझे ऐसा लगता है कि you must have had so many leaps of faith, right? ट्रू. अच्छा, दे Yeah. आर सेइंग अश्विनी योर वॉइस इज क्रैकिंग अ लॉट. Is it? या. Thank- Is it आंटी still नमस्कार. voice better now? Is it still? uh yeah, still it's breaking and coming. It's breaking and coming. Now you're stuck. अच्छा अभी ठीक है. अभी ठीक है. ओके परफेक्ट ऑसम. ओके या. थैंक यू गाइस. तो मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ. मैं सिर्फ बोल रही थी आई वाज इंट्रोड्यूसिंग कुलदीप एंड सेइंग दैट ही इज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स मॉडल. तो मुझे ऑफ कोर्स आई हैव नोन योर जर्नी स्लाइटली मोर क्लोजली, but I feel like you have taken so many leaps of faith in your career, right? Is it still cracking? Sorry, they're saying my voice is still cracking.
या इन बिटवीन, या अभी ज्यादा नहीं है, पहले से बेटर हो गया। पहले से बेटर है। अच्छा, हम्म। आई डोंट नो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं अब मैं। इट्स ओके, गाइस, लेट्स इज इट स्टार्ट बेटर? मे बी। या इट्स ओके, बेटर, आई कैन हियर इट्स यू बेटर बेटर। नाउ। हम्म। ओके, ओके। सो सो हाँ, मुझे बस पूछना था कि फ्रॉम दिस amazing journey that you've had, हम्म। tell me which was probably your biggest leap of faith. सो द बिगेस्ट लीप ऑफ फेथ अगर आप बोलेंगे तो थी, आई थिंक, ज्वाइनिंग थिएटर इन वेरी अर्ली स्टेज। बहुत कम लोग जानते हैं ये कि Hmm. आई वॉज रियली बैड इन स्टडीज। मतलब मैं चौथी में फेल हो गया था, फिर पांचवी में कंपार्टमेंट आ गया, कंपार्टमेंट आते नहीं है लेकिन आ गया मुझे। 0 मार्क्स थे मेरे मैथ में, कभी किसी के नहीं आते। सो वाज दैट बैड। तो पापा को था नहीं कि कुछ करेगा एज सच। तो 10th के बाद ही ना, दे वर लाइक लुकिंग फॉर सम जॉब फॉर मी। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये कुछ कर तो सकता नहीं है। मेरा उन दिनों आर्मी में जाने का मन था बाय द वे, इन बिटवीन। Oh बट my God. Okay. कि मेरे फादर आर्मी में है, मेरी पूरी फैमिली में काफी लोग पुलिस और आर्मी में ही हैं। सो आई वाज लाइक रियली इंक्लाइंड टुवर्ड आर्मी एंड ऑल। लेकिन मेरे को पापा ने बोला इससे ये भी नहीं होगा क्योंकि एग्जाम पास करने पड़ते हैं उसके लिए। तो मुझे ना रोहतक भेज दिया था। आईटीआई करके एक जगह होती है जो बेसिकली ट्रेनिंग देती है। इस ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिशियन बनाते हैं, फीटर्स बनाते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं। तो मुझे इलेक्ट्रिशियन का कोर्स के लिए भेज दिया था 2 साल के लिए, कि ये Oh, okay. इलेक्ट्रिशियन, हाँ ये इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा और फिर अगर ये इलेक्ट्रिशियन बन गया तो उसकी शॉप खोल दूंगा मैं। वहां हमारे घर गांव के पास एक कस्बा है वहां पे, एंड ही विल बी सेटल्ड लाइक एवरी फादर वांट्स हिज सन टू बी सेटल्ड काइंड ऑफ थिंग। Correct. हाँ. तो मैं जब जब मैं इलेक्ट्रिशियन था उन दिनों जब मैंने कोर्स किया और मैं लोगों के पंखे और ये सब ठीक करता था, तो तब मुझे कुछ आइडिया था नहीं। लेकिन मुझे ये था कि मुझे मजा नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था सच। तो मैंने ऐसे ही किसी दोस्त से पूछा, यार मजा नहीं आ रहा ये वो। तो किसी ने बताया था कि इवनिंग कॉलेज है वहां पे आप चले जाओ। इवनिंग कॉलेज में आप दिन में अपना ये इलेक्ट्रिशियन वाले काम कर लो, अपना कोर्स कर लो, शाम को इवनिंग कॉलेज ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। तो मैंने +1 में एडमिशन ले लिया वहां पे, और घर वालों को बिना बताए +1 कर लिया। Oh, okay. और साथ में कोर्स भी कंप्लीट हो गया, और मेरे को हरियाणा बिजली बोर्ड के अंदर एज ए वो जो वो उनको वो बोलते हैं, मैं नाम भी भूल रहा हूँ अभी, इंटर्न टाइप जॉब होती है वो, कि हाँ, आप हाँ, आके हाँ. हरियाणा बिजली बोर्ड ज्वाइन कर लिया। अब आप जाके डेली वहां पे काम करो उनके साथ, फिर शायद आपको पक्का कर दे। वो भी ज्वाइन कर लिया, और मैंने पापा को Okay. बताया कि मैंने कर लिया है ये सब। लेकिन मैंने इवनिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मैं 12th में आ गया। तो बोले भाई तेरे को पढ़ना तो पढ़ ले। माय फादर वाज वेरी कि ठीक है पढ़ना चाह रहा तो अच्छी बात है। इवनिंग कॉलेज में जब मैं गया तो वहां मैंने देखा प्ले का रिहर्सल हो रहा था, और उस प्ले के रिहर्सल में बेसिकली लोग जिस तरह से चीजें कर रहे थे वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। वो मुझे बचपन से पता नहीं था, लेकिन गांव के अंदर मैं काफी लिखता था कुछ कुछ, मतलब Hmm. स्क्रिबल करता था, कहानियां बनाता था, वो सब करता था, और वो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट हो रही थी उससे। तो मैंने उस थिएटर के डायरेक्टर से बोला कि मुझे भी करना है थिएटर। तो बोला भाई तेरे को तो नहीं कर सकता तू। बोला क्यों? Oh, बोला तू हरियाणवी है, तेरे को हिंदी नहीं आती। तो मैंने उसको ऐसे बोला था कि जी ओ मन ने भी करना है थिएटर। तो बोला भाई ये तो नहीं जी. कर सकता तू। मैं क्यों? बोला भाई यूथ फेस्टिवल में जो उसको हिंदी नहीं आती उसके पॉइंट कट जाते हैं। मतलब अगर इफ यू डोंट स्पीक प्रॉपरली इन हिंदी, In तो Hindi. आपका प्ले डिस्क्वालीफाई हो जाएगा from the अच्छा, ऐसा competition. होता था. Okay, So okay. so they can't take me because I'm a Haryanvi and my language issue and all. तो Correct. मैंने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हुई। हाय अर्षा, हाउ आर यू डूइंग? सो मैंने अपने दोस्त जो दिल्ली वाले थे हॉस्टल में उनको बोला कि यार ऐसा ऐसा हो गया, ये 4 लाइन दी है डायरेक्टर ने। बोला अगर ये कल सुबह तू 4 हिंदी में ठीक से बोल के ले आया ना, तो भाई तेरे को प्ले में ले लेंगे। एंड आई सेड ठीक है भाई। तो हम पूरी रात लिटरली वो जो दिल्ली के जो लड़के थे उनके साथ मैंने रिहर्सल की, और अगले दिन शाम को इवनिंग कॉलेज में फिर से मैंने 4 लाइन परफेक्टली बोल दी। और वो Wow. डायरेक्टर बहुत इम्प्रेस हुआ, बोला यार तू तो एक 4 कर रहा है। टोटल 17 ही लाइन थी, आधा घंटे का प्ले था, उसमें मेरी टोटल 17 लाइन्स थी। बट वो प्ले That's a जब lot. किया तो, या हाँ, बट जब वो प्ले किया तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो अरे वाह. और मैंने कहा यार ये मैं करना चाहता हूँ। और मैंने अपने पापा को जाके, और मैंने पापा को बिना बताए वो बिजली बोर्ड की जॉब थी वो छोड़ दी। Hmm. एंड सरकारी जॉब इन स्मॉल टाउन्स आर लाइक Yeah, हमारी big फिल्मों में deal. हीरो बनना। हाँ कि आपको Correct. हीरो का रोल मिल गया फिल्म में, अब आपकी लाइफ सेट है। Correct. तो आई थिंक जब वो छोड़ी ना जॉब, तो वो मेरे सारे दोस्त बिजली बोर्ड के अभी भी हैं, उनके साथ मेरा कनेक्शन है, वो अभी भी कॉल करते हैं। वो आई थिंक मेरे पापा के लिए बहुत शॉकिंग था, उन्होंने बहुत गालियां दी
तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप वाज दैट कि मैंने वो जॉब छोड़ी और मैंने कहा मुझे थिएटर ही करना है, जबकि मुझे थिएटर के बारे में कुछ पता नहीं था। और मैं दिल्ली आ गया और मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर के डायरेक्टर थे रॉबिंदा, उनको ज्वाइन कर लिया वाया समहाउ, आई डोंट नो, मतलब अगर मैं बताने जाऊं तो 2-3 घंटे की कहानी है, बट मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइनिंग द थिएटर ना एट दैट स्टेज वाज द बिगेस्ट लीप ऑफ फेथ आई थिंक। या बिकॉज ऑब्वियसली यू डिडंट नो कि क्या है आगे इसके, हाँ, कुछ नहीं मतलब पता बस था कि 4 ये लाइनें सीखी थी ये दुनिया एंड कहाँ देन जाएगी, ये कुछ नहीं पता था, बट आई वाज लाइक ये मैं करना चाहता हूँ, ये दिस फीलिंग जस्ट केम इनसाइड मी दैट आई वांट टू डू दिस। करेक्ट। और फिर देन आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू वंस यू गेट दैट फीलिंग समवेयर, हम्म। फिर आप ढूंढ ही लेते हो तरीके एंड यू नो हाँ, हाउ टू फिर गेट आप, देयर। हाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, फिर आप ढूंढ लेते हो। एंड देन फ्रॉम देयर हाउ डिड यू गेट इनटू मतलब मॉडलिंग कहाँ से आया, ग्लैड रैग्स? अच्छा, तो ये जो थिएटर से ग्लैडेक्स वाला है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चंक है कि मैंने 3 साल दिल्ली में थिएटर किया, फिर मैंने मास्टर्स किया ड्रामेटिक्स में, और मैं वहां से फिर बॉम्बे आ गया। और जब मैं आया था मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था महेश भट्ट के यहाँ पे। तो लेकिन वो एक दूसरा लीप ऑफ फेथ हो गया था बीच में कि मेरी गर्लफ्रेंड थी और उसके घर वाले शादी कर रहे थे तो मैं उसको भगा के ले आया यहाँ पे, और जेब में अच्छा। पैसे नहीं थे। तो दोस्तों ने बोला यार तू ठीक ठाक दिखता है, तू एक्टिंग वैक्टिंग कर ले, उससे पैसे मिलेंगे, डायरेक्शन में पैसे नहीं है। और ऐसे करते ही करते मैं जहाँ जिम में जाता था वहां पे एक लड़का था समीर, यू नो समीर, तो उसने बोला यार तू तो अच्छा अच्छा दिखता है, तू तू कर सकता है ग्लैडेक्स के लिए। मैंने ग्लैडेक्स क्या है भाई, ये बोला मैन इन कॉन्टेस्ट है, मैं भी कर रहा हूँ और तू भी कर ले ज्वाइन। मैंने कहा अच्छा। उसी ने फॉर्म भरवा दिया मेरा, लेकिन मैं मैरिड था अच्छा। तब, किसी ने बताया नहीं, मतलब कि आप मैरिड हो तो आप भर नहीं सकते, ऐसा था। पर मैंने ओहो। भर दिया, और लकीली जो 10 लोग चुने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से, उसमें मैं और समीर दोनों ही सेलेक्ट हो गए सो करेक्ट। that's how I jumped into ramp, and that's how ramp started. And actually Maureen Wadia, thanks to her, like she introduced me to a different world altogether, from theater to ramp. I think it was a journey which basically brings so many new dimension to you as an actor, as a writer, जो आपको later realize होता है। तो वो रैम्प का पूरी दुनिया देखने को मिली। वो हरियाणा के गांव से जहां से मैं आया था, वहां से ये दुनिया देखना, इट वाज लाइक करेक्ट। अमेजिंग। या मस्ट हैव बीन अ बिग चेंज, नो? कल्चर शॉक था? हाँ, बहुत, मतलब सडनली देखो हरियाणा में तो ऐसा होता है कि छोरी से बात नहीं करते, लड़की से बात नहीं करते, बस लाइक वो हरियाणा में है, वो लड़की है, हाँ, उसको मैं प्यार करता हूँ, हाँ, तो उसको 3 साल में कभी बता नहीं सकती कि आप उसको प्यार करते हो तो वैसा था जब स्टार्ट हुआ। कट टू आप रैंप शो में हो और आप खड़े हो पीछे, और सडनली आपके सामने ही लड़कियां चेंज कर रही हैं, and they're cool करेक्ट। about it, and you are cool about it. I mean, there's no these boundaries and all, because in ramp you're going so fast, they're just moving and veering and running, and करेक्ट। suddenly this whole जो आपका पूरा वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है। करेक्ट। So that's why this exposure, like in ramp, gives me like amazing experience. Amazing experience, yeah. And then from ramp, that was I think 2004 to today, Hmm. writing one of the most watched web series. मतलब I think उस दिन आप ही ने करेक्ट किया था कि it is 900 million people have watched Ashram Yeah, up to date. So yeah, you both the you seasons. know Yeah, both the seasons, and yeah, 900 million is huge. मतलब I don't even know कि कितने लोग होंगे yeah, yeah. मतलब। Even I like when to ashram is actually a kind of a that point where people start like trusting you more. Although उससे पहले मैंने मिकी वाइस लिखी और ब्रिज मोहन लिखी, and I करेक्ट। different film I'm writing, पर वो एक सिंपल लाइन है जो है बहुत सिंपल, और हमेशा लोग बोलते हैं कि हिट है तो फिट है टाइप वाला, बट इट रियली वर्क्स इन सिनेमा एंड एवरीवेयर। तो जैसे ही आश्रम हिट हुआ, सडनली पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू मोर कि ओश, इसने इतना बड़ा सीरीज लिखा है और वो अकेले ने लिखा है, करेक्ट। तो आपकी रिस्पेक्ट जो बहुत बढ़ जाती है, लाइक लॉट ऑफ कॉल स्टार्ट कमिंग। आश्रम की जर्नी भी मतलब इतनी कमाल रही है कि इट इज मैं किसी और के लिए कुछ लिख रहा था, और वो सुनाते सुनाते मैं MX प्लेयर गया था मिलने के लिए। ओके। वहां पे ब्रिजेश करके एक बंदे हैं, उनसे मेरी मीटिंग थी, और ब्रिजेश ने जब सुना तो वहीं पे तेजपाल रावत करके एक और बंदे हैं, उनसे मीटिंग कराई कि ये कुलदीप है, ये हरियाणा से हैं और ये इन्होंने फिल्में लिखी हैं। तो उन्होंने ब्रिज मोहन देखा हुआ था, और चिरण भी सॉरी वो भी देखा हुआ था अपना मिकी वायरस। मिकी वायरस। मिकी वायरस, तो हाँ। उसने कहा यार आप हरियाणा से हो? मैंने कहा, बोला यार ऐसे ऐसे हम एक सीरीज बना रहे हैं आश्रम, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा यार दिखाओ क्या है। उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, और उससे पहले उन्होंने अपनी रिसर्च भी की थी, वो काफी काम कर चुके थे MX, हबीब फैजल उसकी स्टोरी लिख चुके थे।
तो Yes. अभी फैजल की वो स्टोरी और वो एपिसोड जो उन्होंने काम किया था, या लव यू टू चित्रा, सो Chitra. उन्होंने जो काम किया हुआ था वो जब मैंने पढ़ा तो आई फाइंड इट सो फैसिनेटिंग, एंड देन आई वाज लाइक यार ये मेरी ही दुनिया है एक तरह से। एक तो मेरी फैमिली Sorry, में करीब, Samir is saying, sorry, I'm interrupting you. Samir is saying Preeti and Sushant are here. Hi, Preeti. Hi, Sushant. Big hello. Sorry, Kuldeep, I interrupted you. नो प्रॉब्लम, हाँ. हाय गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो वहां पे जब वो मैंने सुना पूरा का पूरा, तो मुझे लगा ये वर्ल्ड है जिससे मैं पूरी तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ। एक तो मेरी Hmm. पूरी फैमिली पुलिस में थी वहां पे, तो वो इस पुलिस सर्कम को जानते हैं, मेरा भाई, बड़ा भाई भी पुलिस में, जीजा, चाचा, 68 पीपल आर देयर इन द पुलिस। और ये Oh, आश्रम, okay. या और ये आश्रम और ये सब चीजें हरियाणा के आसपास बहुत ज्यादा है। जी, correct. तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कनेक्शन है, और उन्होंने मुझे बोला कि आप ना एक एपिसोड लिख के बताइए हमें। एंड गौतम तलवार, द गाय हु इज द मेन हेड देयर, ही वाज लाइक Yes. ब्रो आप लिख के दिखा दो। अब मैंने कहा ठीक है, मैंने लिख के भेजा उनको, एंड दे लव्ड इट। और फिर उन्होंने हबीब को सुनाया, एंड हबीब आल्सो लव्ड इट, एंड दैट्स हाउ इट Hmm. बिगन, बिकॉज they kind of understand that I really understand this world which they want to create. Correct. So that's how it started, Ashram. Right. And And then it took us 11 months to finish this series. Like, it took us really a long, long time. These layers after layers, character after characters, जो उन लोगों ने पूरी की पूरी रिसर्च की थी, जो फिर मैं करके आया, फिर वो मिक्स करके, फिर डिस्कशन पे डिस्कशन तेजपाल के साथ, एंड द MX player team was amazing. I really want to thanks to them and for this opportunity to working on something which I really like, exploring social, economic, and political circumstances of our political, country. Or correct, and this ashram political. thing, तो of course. करेक्ट। और अभी तो सबने देखी है, तो इफ आई वाज टू आस्क यू कि कितनी चीजें थी जो आपने रियल लाइफ से इनकॉर्पोरेट की, बिकॉज लाइक यू सेड इट्स वेरी क्लोज टू यू, टू योर द लाइफ दैट यू हैव लिव्ड। तो डू यू रिमेम्बर एनी सीन्स जहाँ पे आपने यू काइंड ऑफ पिक्ड फ्रॉम योर रियल लाइफ एंड पुट देम इन? वन So तो मुझे there, बहुत फेमिलियर, सॉरी, वन तो मुझे बहुत हाँ फेमिलियर लग रहा है, जो वो लड़की बिना बताए आश्रम चली जाती है, जैसे यू सेड कि without telling your parents you went and finished one whole course, so it kind हाँ, of brings a lot of similarity to me now that you share, but what else did you take? I think बहुत सारे इंसिडेंट्स के अलावा जो कैरेक्टर्स थे ना वहां पे, उनको मैंने बहुत पिक किया। उन्होंने जो कहानियां शेयर hmm की, hmm फिर क्योंकि उनकी कहानी को ऐसे कैसे लिखना बड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि यू नीड टू क्रिएट द ड्रामा, तो फिक्शन को उसके अंदर घुसाया है। लाइक correct दिस होल वर्ल्ड ऑफ आश्रम, अलग अलग आश्रम्स में अलग अलग वर्ल्ड है, वहां अलग अलग डिवोटीज हैं, उन सब की अलग अलग फीलिंग्स हैं। तो उन सब से पिक करने को बहुत बहुत ज्यादा मिला मेरे को, मतलब इतना ज्यादा कि शायद आप 4-5 आश्रम लिख सकते हैं, हर एक की अपनी एक कहानी है। तो उसको क्रक्स में लेके फिर उसको पूरा इंटरेस्ट जो घुसाना था इसके अंदर, उसमें फिक्शनलाइजर हमने कम से कम ऑलमोस्ट 90% फिक्शन क्रिएट किया। फिर okay हाँ, रियल लाइफ से इंस्पायर तो है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कितने सालों में कितने बाबाओं के केसेस हैं, ये हैं। फिर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, और फिर मैंने खुद जाके बचपन में मेरे बाबा देखे हुए हैं, मेरी फैमिली के कुछ एक लोग जो हैं वो जाते भी हैं और अभी भी जाते हैं। जब मैं हरियाणा गया तो दे वर लाइक अरे बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे बाबा ऐसे नहीं है। हाँ, मतलब तूने किसी और बाबा के बारे में लिखा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और एक मैंने ना आई सॉ वन ऑफ योर टेड टॉक्स, और हम्म, उसमें यू स्पोक वेरी ब्यूटिफुली अबाउट हाउ यू वॉच्ड योर फर्स्ट फिल्म इन अगेन गांव में, और आई थिंक योर मूवी वाज द फर्स्ट मूवी यू सॉ वाज प्रोबब्ली एन अमिताभ बच्चन फिल्म। या तो मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का नहीं, उसके पहले भी एक पिक्चर थी नास्तिक, विच यू एक्चुअली नास्तिक, नास्तिक। दोनों बच्चन साहब की फिल्म है। हाँ, हाँ नास्तिक was the one you really beautifully described about, how he's running, वो बच्चा होता है, भाग रहा है, and then suddenly becomes big, and you found या that so fascinating, the world of films. या So you've grown up, and you and I also, all of us have grown up on movies. That format बहुत ही अलग था, सिनेमा घर में देखने वाला जो एक magical experience था. Cut to what you're writing today, web series, and where you actually saw success, like you said. कितना, मतलब जब you were in the village, गांव में थे, जब सोच रहे थे कि मैं एक दिन मूवीज में काम करूंगा या पिक्चर लिखूंगा, और आज जब वेब सीरीज लिख रहे हो, तो कितना वो एक फर्क आ जाता है ना? how do you just adapt your writing to it, because you've grown up on Bachchan and commercial cinema to an ashram? या सो बेसिकली आई थिंक जब हम घुस जाते हैं किसी भी आर्ट में, तो जिसने आपको इंस्पायर किया वो तो आपके साथ रहता ही है। लाइक दैट ड्रामा, दैट एक्शन, बच्चन साहब तो फिर अलग ही क्लास है।
तो वो नास्तिक वाला जो सीक्वेंस जो आपने बताया वो मैं बता देता हूँ लोगों को कि मैं हाँ पहली बार फिल्म देखने गया था, तो मैं था फोर्थ में, मेरा भाई लेके गया था, बड़े भैया महावीर सिंह। और मैंने देखा एक लड़का भाग रहा है छोटा सा, और भागते भागते ना जंप कर देता है ट्रेन के ऊपर, और ट्रेन पे हम कट्टू दिखाते हैं, ये महावीर भैया का नाम देखते ही महावीर भैया का कॉल आ रहा है बाय द वे। तो बहुत लंबी लाइफ है उनकी। सो वो कूदा एंड ही इज अमिताभ बच्चन। आई वाज लाइक वाओ, ये कैसे हुआ? एंड आप इतने छोटे होते हो ना, आप समझ नहीं पाते हो क्या कटिंग वटिंग, लेकिन वो आपके लिए मैजिकल हो जाता है। करेक्ट। सो वो वहां से जो मैजिकल असर हुआ था ना सिनेमा का, वो थिएटर ने उसको दोबारा से कुरेद दिया एक तरह से। लाइक आई स्टार्ट लिविंग दीज मोमेंट्स, like creating drama, rehearsals, doing plays, reading this literature and everything, and जो मैं सिनेमा पे देख रहा हूँ वो अपनी आंखों के सामने अपने आप क्रिएट होने लग गया, विजुअलाइजेशन। तो जब वो सब करते करते मैं मास्टर्स खत्म करके ड्रामेटिक्स में बॉम्बे आया, तो मुझे था कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। But as I told you that because of circumstances, I start acting a lot and then doing ads and everything. इस पूरी जर्नी के दौरान पैसे तो आने लगे बहुत ज्यादा, पर मेरा जो सिनेमा के प्रति प्यार था ना, वो इतना था कि मैं चुपचाप बैठ के स्क्रिबल करता था कि मुझे लिखनी है, फिल्में लिखनी है। यस। तो वो पूरा का पूरा राइटिंग का प्रोसेस कहीं अपने आप अंदर ही अंदर बनता रहा, ऐसे उबलता रहा, लाइक आपको पता नहीं लगा। और जिस दिन मैंने लिखना शुरू किया ना, इट सडनली स्टार्ट कमिंग टू माई लाइक माई ऑन पेपर, लाइक दक 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 दक। तो जैसे आज आश्रम लिखने को मिली या मिक्की वायरस, या तो वो जो इतने साल का एक्सपीरियंस था ना, जो कहीं घुसा हुआ था, वो सबकॉन्शियस में सब चीजें अडेप्ट करता माइंड एज अ राइटर, एज एन एक्टर, एंड सडनली स्टार्ट कमिंग। और वो इतनी स्पीड से आया कि आपने सारी चीजें देखी और जानी भी अच्छे से। और उसका मैं बोलूं कि कितना फर्क है, फर्क से ज्यादा आई थिंक वो मिक्स हो गया। जो मेरी राइटिंग थी वो मेरी लाइफ के साथ कहीं मिक्स हो गई अपने आप। और एज एन आर्टिस्ट यू बेसिकली यू ग्रोन एज एन आर्टिस्ट, ये बोल सकते हैं। और वो सिनेमा और रियल लाइफ, उन सब से मिलके जो निकला फिर ये आश्रम, मिक्की वायरस, और अभी बाकी जो फिल्में मैं प्लान कर रहा हूँ, वो सारी चीजें होना शुरू हो गया। तो आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल इट वाज। That is beautiful. It's such a beautiful journey because even I Yeah. always think about जब हम वेब सीरीज देखते हैं ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि people who are making it, मतलब एक फिल्म बनाने में इतना टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। वेब सीरीज आर लाइक 5 different films Yeah. about the same thing. मतलब आप अगर आर्क देखोगे, स्टोरी आर्क, and how much you have Layering. to kind of layering to dig into every character. इतनी सारी स्टोरी लाइंस हो सकती है। कल को आप obviously because the channel or the OTT thinks about कि whichever works we'll probably take a spin-off of that, but Yeah. that is a brilliant, I think you guys do a brilliant job of just creating that world, because आजकल Yeah. वो बहुत बहुत जरूरी है। फर्स्ट सीजन में वो वर्ल्ड क्रिएट करना इतना जरूरी है कि लोग उसमें बिल्कुल पहले बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समा हाँ, जाए। हाँ। हाँ, और एक बार कैरेक्टर से जुड़ गए ना आप, तो फिर आप स्टोरी के यू वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग। सो हाँ, दैट्स ब्यूटीफुल फॉर यू आल्सो टू लिव विद अ स्टोरी एंड बी सो कमिटेड। हाँ। And- मतलब वो उस टाइम से आश्रम लिखते वक्त इट वाज लाइक सब प्लॉट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना सीरीज के अंदर, Correct. जितना कि मेन प्लॉट है। और वो कैरेक्टर की जर्नी भी उसके साथ ही चल रही होती है। तो दे आर 3 लेयर्स ऑफ जर्नी विच आर गोइंग टुगेदर और डिफरेंट डायरेक्शंस। सो इसीलिए सीरीज की राइटिंग सच्ची में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत एक्साइटिंग एक साथ है, क्योंकि आपको सारे कैरेक्टर्स की जर्नी को आर्क देना है, फर्स्ट सीजन का आर्क, सेकंड सीजन का आर्क। तो अगर आपको रियली एक्सप्लोर करना है ना एज अ राइटर, तो वो देता है आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि Correct. 2 घंटे की नहीं, ये 10 घंटे की कहानी है जो 20 घंटे की भी हो सकती है। तो हर लेयर को आप कुरेद को निकाल सकते हो। तो बहुत सुंदर है। और वो जितनी सीरीज पे हम लोग देखना शुरू भी करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हम इसलिए जुड़ जाते हैं कि हम हर कैरेक्टर के साथ लाइक अटैच हो जाते हैं। करेक्ट। इतना जरूरी है ना टू कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर। फिर या कनेक्ट वो विद कुछ द भी कैरेक्टर। करे, हाँ, यू विल जस्ट लाइक लॉट ऑफ पीपल आर नाउ सेंडिंग, लाइक हरियाणा में लोग जपनाम भाई साहब, बाबा जाने हाँ, हनुमान की जपनाम। बात। सडनली ये किसी ने भी नहीं सोचा था, एमएक्स में मैंने भी नहीं सोचा था लिखते वक्त कि जपनाम इतना बड़ा पिक हो जाएगा, हिट हो जाएगा। हाँ। हाँ। ये बहुत सी लाइन थी, जपनाम बाबा जाने हर मन की बात, वो हाँ। इट वाज जस्ट लाइन, बाबा जाने हर मन की बात। वो भोपा डराता भी इसी बात से। लाइक इंस्पेक्टर के 360 एंगल समझ लो भाई साहब, बहुत जरूरी है, इतनी 60 डिग्री का एंगल। तो अभी मैं बन रहे हूँ उस पे, एंड देन यू, इट्स लाइक एज एन एक्टर योर फेस रिमेम्बर, लोग याद रखते हैं कि अरे यार हीरो है,
as a writer, I think it's very beautiful when people start using your lines. That's success, I think. That's beautiful. And Yeah. you've seen it now, so it must be Yeah, so now I amazing, seen right? it. I'm enjoying it. You can say it's beautiful. And I watched a little bit of it. I told you I've not been able to see the whole thing, but मेरा ये बहुत personal question है. I found that the women on the show are so strong. मतलब आप शुरू भी करते हो with the story of this girl, and then also as you follow up, there are very strong women. But जब आप marketing देखते हो ना पूरी, तो it's all about Bobby Deol, about the Baba, I and know. about that kind of didn't go down well with me. I'll be honest, because I'm like this show actually has some really powerful women, and the all the marketing is around the Baba. Hmm. Was that something that you wrote? I mean, it's not necessarily a bad thing. This is just personally what I feel. Hmm. But मुझे पता करना था कि is that something you thought of while writing? How did you envision? So I think it's again, see, this is a very important question. Nobody would have asked this one. ठीक है? क्या है वो औरतें जो हैं एक्चुअली वो ड्राइविंग फोर्स हैं बाबा की फेलियर के पीछे वो ले जाके Hmm. मारेंगे अंत में उसको ठीक है और Hmm. औरतें उसकी सबसे बड़ी भक्त थी अब Correct. जो क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई बाबा को दिखा सबसे ज्यादा रहे हैं लेकिन औरतें इतनी सक्सेसफुल इन ये क्यों नहीं प्रमोशन में सो आई थिंक द हाँ. मार्केटिंग टीम अंडरस्टैंड वन थिंग मे बी आई एम थिंकिंग पॉजिटिवली आई डोंट नो देयर होल लेयरिंग Yeah, मुझे yeah. लगा उन्होंने बॉबी देओल इन सबको दिखा के ऑडियंस को अंदर बुलाया ताकि जो उनकी वुमेन कैरेक्टर्स हैं उनको वो दिखा सके अच्छे से क्योंकि ये जितनी Correct. भी लड़कियां काम कर रही हैं चाहे उसमें बबीता कैरेक्टर हो चाहे पम्मी हो चाहे वो अदर गर्ल्स हैं जिनको एक्सप्लॉइट करता है आई मीन वो ऐसे समाज से उठ के आई हुई है जिनको हम कम देखते हैं Exactly. लाइक पम्मी का घर क्या है वो पिछड़ी जाति से है वो हमारे घर में आती है सफाइयां कर जाती है हम देखते भी नहीं उनको हमें पता भी नहीं लगता वो आके हेलो दीदी कैसे हैं बोल के चली जाती है Correct. Correct. अगेन बबीता वॉज ए प्रोस्टिट्यूट जिसको बाबा ने Yes. शादी वादी करा लिया तो Hmm. औरतों का जो दुनिया है ना जिन जो बेसिकली आकर्षित होता है किसी भी आश्रम की तरफ जब मैंने रिसर्च की थी मैंने जाना कि वाई 70% ऑफ देम आर वुमेन एंड 30% ऑफ द मैन एंड एवरी अदर थिंग मतलब Hmm. ऑलमोस्ट रेशियो बहुत ज्यादा है वो इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ना औरतों को कभी बोलने का मौका नहीं देती मैंने बचपन से गांव में भी देखा है ऑल्दो माय मदर Hmm. वाज अ फार्मर एंड अ वेरी स्ट्रांग पर्सन वो हमेशा अपनी बात बोल देती थी और मेरी 5 बहनें हैं और Hmm. मेरी माँ ने हमेशा ट्रीट भी ऐसे ही किया है कि शाम को अगर बर्तन धोने होते थे तो मेरी माँ बोलती थी आज कुलदीप धोएगा कल ये धोएगा Hmm. परसों ये धोएगा ये गोबर डालना तो वो कहती थी लड़के और लड़कियां कोई काम अलग नहीं होता लेकिन That's सोसाइटी very में progressive, huh? yeah and she Considering never कि went to school हाँ तो she Hmm. was a farmer she never went to school but that's how she treated all of us बट Wow. मैंने देखा कि छोटी छोटी चीजों में भी ना जैसे अरे तू रहने दे तो एक काम कर ले तू अपना खाना बना ले तो ऐसा होता है ना औरत अगर कुछ कहना भी चाह रही है ना तो पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन आई डोंट नो व्हाई सबसे बड़ा Correct. काम है दुनिया में होम मेकर होना जिसको आजकल लोग कहते हैं अरे होम आर यू डूइंग समथिंग एल्स आर यू होम मेकर अरे भाई होम मेकर इज काइंड ऑफ हैंडलिंग अ वर्ल्ड कहीं हैंडलिंग अ कंट्री 24/7. हाँ 24/7 जॉब कुछ का कोई पैसा नहीं है और कोई साला सॉरी टू यूज द बैड वर्ड कोई ध्यान भी नहीं देता माँ की Credit तरफ भी या नहीं है. वाइफ की हाँ. तरफ या किसी की तरफ तो जब ये कैरेक्टर में लिख रहा था ना Hmm. कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मेरे साथ जुड़ रही थी लाइक पम्मी आएगी एज अ डिवोटी बट वंस शी गॉट टू नो व्हाट शी इज Hmm. उसकी आवाज दबेगी नहीं वो कहेगी मैं तोड़फोड़ मचाऊंगी बबीता Correct. उसने अलग दुनिया देखी है तो वो कहती है कि ठीक है तू मैनिपुलेट कर रहा ना मैं भी मैनिपुलेट ही करती हूँ तेरे को सो बाबा फाइंड अ इक्वल इन बबीता इन समवेयर इन फ्यूचर यू विल रियलाइज अच्छा ये तो अलग ही गेम है सो दीज वुमेन बेसिकली आर सो इंस्पायरिंग एंड Hmm. इनकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बाबा से ज्यादा है क्योंकि देखिए एक्सप्लॉइट तो बाबा कर रहा है एक्सप्लॉइट कोई और हो रहा है लेकिन उस एक्सप्लॉइटेशन के बीच में शी इज ट्राइंग टू फाइट और अदर वन इन द एक्सप्लॉइटेशन ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू फिनिश दिस बाबा सो Correct. yeah these characters are like I really love them although I created I No, I do too. Actually, I'm interested to see more. But वही मुझे हाँ, एक ही चीज वो लग रही थी कि इतने बाबा पावरफुल बाबा विमेन है हमने देखा ही नहीं उनको प्रमोशन में मतलब हम I जानते know ही नहीं है कौन बट आई maybe गेस there's a they strategy will get behind yeah 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 maybe I guess that yeah but now probably everybody so have seen must be because it's a hit now everybody must be seen it like I correct have seen correct it already correct or you mentioned your mother right now again if I were to take you back थोड़ा सा from your life while you grew up versus अब
क्योंकि आप गांव छोड़ के यू कम टू मुंबई एंड नाउ यू मस्ट बी इन मुंबई फॉर व्हाट 20 years 20 years. Yeah. 20 years, right? Yeah, so 20 years. Do you feel at home in Bombay now? या Yeah, फिर I अभी do. भी you No, no, do? I do actually. Something is very beautiful about Mumbai. जब मैं पहली बार आया था, somehow I felt home in Mumbai. That's the beauty of Mumbai, I think. I found a lot of friends. और जो हमारे बोलते हैं कि इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं होते, ऐसा हम्म लकीली मेरे साथ नहीं हुआ. I not just found a lot of friends, a lot of support from our industry. I found that थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद ये अपॉर्चुनिटी देती है. अगर आपके अंदर है तो आपको भिड़े रहना पड़ता है. यू कांट जस्ट लीव. हाँ, बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है बिकॉज पूरे इंडिया से लोग आके यहाँ भिड़ते हैं, विच इज देयर. बट मुंबई सबको जगह दे देती है. आप देखिए ना, स्लम से लेके और आपको 50 का CR तक का घर मिलेगा यहाँ पे. सो करेक्ट एवरीबडी कैन स्टे हियर फाइंड एंड देयर कैन स्पेस सर्वाइव. हाँ, वो आपको सुबह 2 रुपए की इडली भी मिल जाएगी और आप 5 स्टार होटल में जाके 1100 रुपए की भी 2 इडली खरीद सकते हैं. सो जो चीज बॉम्बे के पास है, मुझे लगता है वो इंडिया में किसी सिटी के पास नहीं है, ऐसा मेरा मानना है. और मुझे ऐसा भी लगता है कि मुंबई जो है वो पूरे ऑल ओवर मुंबई से, ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बड़े सिटीज भी हैं उनसे करीब 25-30 साल आगे इन एवरी वे. आई एग्री. इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के. हाँ, छोड़ के भाई क्लेanलीनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, मुंबई की बात नहीं करते, बेटर नॉट टू, वो टॉपिक नहीं छेड़े थोड़े. बट विल फोकस ऑन द गुड्स ऑफ मुंबई. और या जैसे यू सेड ना कि यहाँ पे हर किसी के लिए जगह है, हर किसी को काम मिल जाता है. और अब तो बिकॉज ऑफ ओटीटी, आई फील, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट स्पेस, बिकॉज ऑफ ओटीटी कई ऐसे लोग हैं जैसे यू, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू थिंक अबाउट जब व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो ऑफ यू, मुझे याद है आज भी, जब भी हम गोरेगांव स्टारबक्स में एंटर करते थे, देयर वाज ऑलवेज, यू वर ऑलवेज देयर इन दैट कॉर्नर सिटिंग एंड राइटिंग. और ये एक चीज है जो मैंने हमेशा नोटिस किया. मैंने बोला यार, हाउ इज दिस गाय सो कंसिस्टेंट. एंड लाइक यू सेड, राइट, देयर आर थैंक यू. स्ट्रगल्स. देयर आर पीपल हु वुड ऑब्वियसली, इफ यू से यू आर अ राइटर और यू आर एन एक्टर, तो लोग सामने से पूछते हैं ना, अच्छा आप किस में आते हो या फिर आप कहाँ आए हो. ये वाली स्टेज तो नहीं थी अब तक कि पीपल हैड स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू. या What keeps you going? Because I have seen you for years back to back sitting in a cafe in the noisiest places and just writing. मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि यार कैसे सो करते हैं. सो आई थिंक जो आपका शो है ना, लीप ऑफ फेथ, इससे एक चीज इसको मैं जोड़ता हूँ कैसे हुआ था ये. So in 2009, I was doing TV at one point of time. 3 years I did TV as an actor, and I was doing pretty good at that time. मेरा लास्ट शो था ममता, ZTV के लिए. At that time, they were paying me 15,000 rupees per day, and Wow. it was quite a good amount at that time. Yeah. And मुझे लगा था यार सही है, अभी सोच लिया था गाड़ी वाड़ी लेंगे, फिर घर वर बुक कराएंगे. पर रोज में जब मैं सेट पे जाता था ना, रोज सेट के ऊपर जाते वक्त आई वाज नेवर लाइक, इट वाजंट द एक्साइटिंग थिंग. सेट पे जाते थे, बैठते थे, फिर टीवी की स्क्रिप्ट आती थी, फिर हम ठीक करते थे, फिर उसको शूट करते थे. हर रोज मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता था वहां जाके, और जो डायरेक्टर भी था वो भी काफी ओपन था. तो वो लिखते लिखते ना, मैंने एक दिन आके अपनी वाइफ को बोला कि यार मैं ना टीवी छोड़ रहा हूँ. सब दोस्तों को बोला टीवी छोड़ रहा हूँ मैं, तेरा अभी तो करियर शुरू हुआ है, तू ममता मेन रोल कर रहा है, तूने अभी ऐसा देश है मेरा किया है, अच्छा करा तू एज एन एक्टर, पागल है तू छोड़ रहा है. मैंने कहा नहीं यार, मैंने एक्चुअली ये काम करने नहीं आया था, मैं एक्चुअली फिल्म डायरेक्ट करने आया था यहाँ पे, और मुझे फिल्म ही करनी है. और इस बीच में जो मैं एड्स कर रहा था, उनके 2-3 डायरेक्टर्स ने मुझे लिखने के लिए कुछ बोला था, मैंने लिख के दे दिया था ऐसे ही फिल्म. तो बोले करेगा क्या. मैंने कहा मैं फिल्म में एक्टिंग करूंगा, फिल्म लिखूंगा और फिल्म ही डायरेक्ट करूंगा, फिल्म के अलावा कुछ नहीं करूंगा, एड्स भी नहीं करूंगा, टीवी भी नहीं करूंगा. और मैंने ममता शो बंद हुआ और मैंने छोड़ दिया ऑडिशन पे जाना, और उसके 9 महीने कोई काम नहीं आया. लाइक लिटरली एवरीथिंग वाज लाइक गॉन, मेरे पैसे वैसे सब खत्म. और रितु वाज लाइक क्या किया तुमने, आर यू मैड, क्या किया तुमने वो. बट तब मैंने सोचा था कि मैं लिखता हूँ, मैं लिखता रहूंगा, जैसे मैं ऑडिशन देता फिल्मों के लिए, फिल्मों के ऑडिशन देता रहूंगा. और 9 महीने बाद, यू कैन से इट्स लक और व्हाटएवर इट इज, मेरी बेटी पैदा हुई थी. और जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसके चौथे दिन मैंने एक फिल्म साइन की एज ए मेन विलन, और मैं शूट पे चला गया. और उसके बाद जब भी मेरे को फिल्म मिले ना मिले, मैं चुपचाप बैठ के वहां लिखता रहता था स्क्रिप्ट्स. Yes. तो लोग बोलते तेरे पास काम तो है, तू लिखता क्या है, और तू डेली इतने पैसे खर्च क्यों कर रहा है. मैंने कहा ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास अभी काम नहीं है, पर स्क्रिप्ट्स तो बाद में काम आएंगी ना. तो फ्रॉम देन टिल डेट, मैंने जब तक मैं शूट पे नहीं हूँ, आई यूज्ड टू राइट एवरी डे 6 to 8 hours. Yes. धीरे धीरे भगवान की दया से जिन लोगों ने पढ़ा,
वो एक स्क्रिप्ट आई पहले 2011 में, बेसिकली भीगी बसंती के पास गई थी वो स्क्रिप्ट, जंतर मंतर, जो अब शायद बन रही है, जो मैं डायरेक्ट करूंगा। उस टाइम कोई और डायरेक्ट कर रहा था उसको, एक एड फिल्म मेकर, वो उन्होंने खरीद ली, मेरे पास पैसे आ गए। एंड देन जब वो स्क्रिप्ट उन्होंने ली तो उन्होंने कहा ये अच्छा लिखता है यार, तूने क्या लिखा है? और मैंने कहा ये लिखा है, 1-2 फिल्में और लिखी हैं, आप सुन लो। मैंने सुनाई तो बोला हमारी ये 2 स्क्रिप्ट ने पढ़ के बता। तो मैंने उनके पढ़ के पॉइंट्स लिख के भेज दिए और उनको बड़े ठीक लगे। उन्होंने एक और स्क्रिप्ट भेजी, मैंने कर दी फ्री में। आई डिडंट नो एट द टाइम, आई हैड दिस लाइक होल आइडिया कि अरे यार आर्य लिख पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है और करते हैं। और उन लोगों ने कहीं मेरा नाम दार मोशन पिक्चर में भेज दिया। किसी की बात हो रही थी किसी के थ्रू, निखिल भट्ट करके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, वो थे उस टाइम दार मोशन में, और सौरभ की ये फिल्म थी जो राइटर डायरेक्टर थे इसके। तो वो स्क्रिप्ट अप्रूव हो चुकी थी, फिल्म बनने वाली थी, लेकिन स्क्रिप्ट से खुश नहीं था दार। दे वांटेड समथिंग विद द स्क्रिप्ट बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट। तो somehow someone from भीगी बसंती, राज चौधरी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, जिसकी स्क्रिप्ट मैंने उस वक्त लिखी थी, राज ने मेरा नाम उनको सजेस्ट किया कि आप कुलदीप को भेज दो स्क्रिप्ट। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने पॉइंट्स बनाए और मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा होगा। एंड दैट्स हाउ निखिल टोल्ड मी व्हाट यू डू। आई डू द स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग, बट स्क्रिप्ट के डायलॉग पूरे चेंज करने पड़ेंगे। तो बोला कर दो। एंड दैट्स हाउ आई गॉट मिकी वायरस। एंड मिकी वायरस के डायलॉग्स काफी हिट हुए अगेन, और वो डॉक्टर हुई। उसके बाद फिर लॉट ऑफ पीपल केम, किसी का घोस्ट राइटिंग के लिए भी। और फिर ब्रिजमोहन आ गई, निखिल की दूसरी फिल्म थी, उसने कहा कि मेरी फिल्म के डायलॉग लिख दो, तो मैंने लिखे। निखिल की एक और फिल्म भी मुझे मिली जो उसने भेजी, वो हुड़दंग, जो आजकल शूट हो रही है, द थर्ड वन। सो निखिल एंड मी हैव डन 3 फिल्म्स टिल नाउ। और मैं उसको बोलता हूँ नेक्स्ट वन मेरा बिना करना मत, नहीं तो बनेगी नहीं, तो लेटफुल होता है। सो आई थिंक वो जो थॉट था ना कि मुझे, मेरे पास काम नहीं है, ऐसा थॉट नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में था कि मेरे पास तो आई हैव टू राइट, सम डे इट विल कम। एंड आई वाज अप्रोचिंग पीपल, आई वाज मीटिंग पीपल। As an actor also I did the same thing. I used to go to every audition when I was acting, every, like people used to call me, भाई तू सारे ऑडिशन दे देगा क्या? पर मुझे लगता था कि मैं आया किस लिए हूँ, फिर मैं घर पे क्यों बैठा हूँ? So I think if you are here in Mumbai and you're not doing anything, then that's wrong। अगर कोई consistency के बिना ये इस फील्ड आपको छोड़ेगा नहीं। I mean आपकी आर्ट भी खत्म हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, चाहे वो एज एन एक्टर है, चाहे राइटर है। तो थैंक्स फॉर नोटिसिंग ऑल दो। No, I think that's the first thing that anyone will notice about you. I ask anyone who knows you. I think consistency, discipline, and just honesty of, just every interaction with you is always very honest, very transparent. And you don't really go back after talking to you and think कि अच्छा क्या सोच रहा होगा या कैसे सोचा। It's like what जो है मन में वो पता है कि बोल दिया, कुलदीप ने बोल दिया होगा। So that I think is a very beautiful thing, and वो दिखता भी है काम में, I'm pretty sure. So thanks a lot. Yeah. And then what else was I wanting to talk about? From your this writing to the third leap of faith which I took was the most dangerous, I think. Which was the third one? That was in, तो जब आपने लीप ऑफ फेथ था, मैं सोच रहा था मेरी लाइफ के 3 लीप ऑफ फेथ कौन से हैं बड़े। तो एक तो थिएटर ज्वाइन करना था, एक टीवी छोड़ना था, और तीसरा था रिजर्वेशन राइट्स वर हैपनिंग इन हरियाणा, आंदोलन था, और मैं लिख रहा था उन दिनों। और मैंने देखा टीवी पे एकदम जैसे अभी ये फार्मर्स का चल रहा है, ऐसे उस टाइम पे ये पूरा चल रहा था। और पीपल आर अब्यूजिंग हरियाणवी पीपल, लाइक क्या है वाहियात है, रोड का रेप कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एंड सिंस आई एम बीइंग फ्रॉम हरियाणा, तो मुझे लगा यार इतना बुरा तो नहीं है, आई मीन। और उस वक्त मेरी फिल्म की बनाने की बात चल रही थी, एक फिल्म है मुर्गा जो मैंने लिखी हुई, उसकी डायरेक्शन की बात चल रही थी। आई सडनली लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई वेंट टू हरियाणा। एंड मैंने तब किसी को बताया नहीं था। आई वेंट देयर एंड डिड रिसर्च फॉर 45 days। वापस आके मैंने बोला मुझे ये फिल्म बनानी है, एंड इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। तो उससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो सब इवन अमित राय, वन ऑफ माय गाय हु डज द लाइन प्रोड्यूसर, वो टेनेंट का लाइन प्रोड्यूसर बाय द वे, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। टेनेंट का? हाँ, तो उसने बोला अरे यार कुलदीप भाई सही तो चल रहा है लाइफ, क्यों आप बेकार में क्या कर रहे हो, और कौन पैसा लगाएगा, क्यों पैसे लगा के जा रहे हो आप? सो लाइक यार आई नीड टू गो बिकॉज there's a feeling inside you that you need to tell this story। क्योंकि जो मैं 45 दिन वहां गया ना, मुझे लगा कि जो टीवी पे हम देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, और जो रियलिटी में वहां हुआ है वो बहुत अलग है। तो वो डॉक्यूमेंट्री मैंने उस वक्त बनाने की सोची थी जब अगेन आई वाज सेटल्ड एंड एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर काम आ रहा था। वो सारा काम छोड़ के मैंने अपनी जेब से पैसे लगा के, एंड आई वेंट टू हरियाणा। आई टुक अ टीम ऑफ 17 people and lots of people start supporting in Haryana। I can't tell you the kind of support I got।
मनी वाइज, घर पे रहने से लेके, अपनी गाड़ियों में बिठा के दिखाने से लेके, एंड समहाउ लाइक मैंने 2 साल कुछ नहीं लिखा, मैं सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, पहले 1 साल सॉरी। उसके बाद वो खत्म हुई, तब तक मुझे पता लगा कि मैं तो अपने पैसे, अपनी वाइफ के पैसे, लोग दोस्तों के पैसे सब मिला के कुछ 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर चुका हूँ, जो मैं डेट में Oh हूँ। my God. एंड एवरीबडी वाज सेइंग ये क्या किया भाई तूने, और मैं भी कह रहा ये क्या किया मैंने 2 साल काम ही नहीं किया और मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे एंजाइटी अटैक आ गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, एंड इट वाज क्रेजी। Oh my हाँ, God. Okay. बट देन अगेन राइटिंग सेव्ड मी, लॉट ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड, किसी को अपनी कुछ लिखवाना था लेकिन उनको अपना नाम नहीं देना था, तो आई डिड लॉट ऑफ घोस्ट राइटिंग, प्रॉपर जॉब भी। एंड वो फिल्म के एडिट करते करते जो बहुत टाइम लगा, उसके बाद उसको सडनली कॉल आने शुरू हो गए। आई गॉट माई फर्स्ट स्क्रीनिंग इन यूके, देन यूएसए, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया। 17 स्क्रीनिंग वी डिड, हाउसफुल, पीपल लव्ड इट। आई मीन Yes. आई डिडंट नो दैट एट दैट टाइम कि मैं जब बना रहा था कि एक दिन लोग इसको इस तरह से देखेंगे। और उसके बाद 2 साल मुझे सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ना पड़ा, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया था सर्टिफिकेट देने से। एंड पीपल स्टार्ट जजिंग यू, अरे फिल्म बनाया था, इसे दिखा ही नहीं, अरे हमारे से थोड़े पैसे ले गया, आज दे नहीं रहा है। लॉट्स ऑफ प्रेशर, पीपल स्टिल सेंड मैसेजेस ऑन योर एफबी एंड इंस्टा, अरे कहाँ है वो फिल्म। और मैं कुछ को आंसर देता था, पर मैं सोचता था कि जब तक कि कर नहीं लूंगा तब तक नहीं बोलूंगा। एंड देन 2 साल के उस कोर्ट केस में फाइनली जो मुंबई हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में दिया ऑर्डर, और अब Okay. मुझे सेंसर Nice. सर्टिफिकेट मिल गया है। सो आई और थिंक रिलीज हो रही है? वो पिक्चर कब अब रिलीज हो रही है? जी, अब उसको हमारे को जब भी कोरोना आया उससे जस्ट पहले हमारे को सेंसर सर्टिफिकेट मिला था। Oh, अब हम lovely. जैन या फेब में हरियाणा में स्क्रीनिंग करनी शुरू कर देंगे। अभी सिनेमा हॉल खुले ही थे, लेकिन अब वहां पे वो पूरा फार्मर्स का आंदोलन चल रहा है, तो जैसे ही खत्म होगा विल स्टार्ट स्क्रीनिंग आवर फिल्म। सो जस्ट वांट टू लाइक टेल यू ना अश्विनी, दैट लीप ऑफ फेथ जब भी मैं देखता हूँ ना आपका ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में आते हैं आते हैं. जब आपको एक स्टेप ऐसा लेना होता है जो आप सोच रहे हो कि मैं इस वक्त तो ये नहीं ले सकता, लेकिन अगर आपकी जो इंटेंशन होती है ना, जो अगर वो कहती है ना कि गो, देन आई थिंक यू शुड गो, बिकॉज इंटेंशन से बड़ा कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है एज एन आर्टिस्ट। अगर आपको इंटेंशन आ रही है ना ये करने की, तो आप कर दो, फिर बाद में चीजें हो जाती हैं, थिंग्स फॉल इन प्लेस। दैट्स व्हाट आई सॉ। स्ट्रगल तो है, वो तो कहा नहीं है, ये छोड़ दो। Cannot avoid that. Yeah, But you I feel can't. like you are such an apt person for this chat of leap of faith. And I think जब हमने first time भी बात की थी, तो इतने easily वो flow हो गया था. You already had so much going on in your mind, saying हाँ मैं तो I can talk so much. And I think it's so inspiring कि अभी finally Thank you're you. getting your due. तो Thank you. Thank and you. it's just started I think. अभी तक पूरा मिला नहीं मेरे हिसाब से, तो ओह, बहुत सालों का ड्यू बाकी है. तो बहुत ये बाकी है। ये ट्रेलर है आपके लिए. You'll really gonna do. I have one last question before. I know I had requested you to recite a poem for all of us if you Okay. have ever written something on the leap of faith. But before that, I want to also talk about the remake of Earth that you're writing. Life has come full circle for you, ना? आपने बोला you started your career with Mahesh Bhatt, and Yeah. now you are actually writing a remake of Earth. Now, See, एक क्या? हाँ? see, amazing it is. I It didn't is plan amazing. this. Exactly, but it's still beautiful, right? तो Yeah. एक चीज मुझे इस मूवी के बारे में डराती है, वो है जैकलीन फर्नांडिस. So I'm not very sure how that is going to go, but I'm very excited. ओके, नहीं अभी You कास्टिंग are. वास्टिंग हुई नहीं है, वो न्यूज में वो जैसे फेक न्यूज आती है, ऐसे ही और भी न्यूज हाँ. आती रहती हैं, आप एक्टर से मिलते हो, Oh. कोई आ जाता है, तो अभी हाँ. कास्टिंग हुई नहीं है। रेवती मैम इज स्टिल Okay. talking to actors, the producer Ajay and Sir Sharad Chandra ji, they are still in talks with lot many actors. I think they're gonna find something very apt for the cast. बट हाँ, अर्थ अपने आप में एक कमाल चीज है। वो अगेन भट्ट साहब के यहाँ जब स्टार्ट किया था, तो उनकी फिल्में देख के ही आए थे, और जब Correct. मुझे ये फिल्म ऑफर हुई तो आई वाज लाइक इट्स एन ऑनर। और फिर वो लिखने के बाद जैसी आई और रेवती मैम के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ, me and Revati ma'am are really happy with the script, and people who listen to it, they also say कि भाई क्या अच्छा लिखा हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है Wow. कि okay, people are loving it and it's gone on something. I don't want to like Reveal too much. reveal हाँ. too much, but I'm हाँ. really excited, honored, and it was such a challenge. And मुझे लगता है कि जब वो ऑडियंस के सामने आएगी तो लोग उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना आश्रम को दिया है और बाकी चीजों को दिया है। I hope so. I'm also very excited. Personal note पे, that is one thing I'm really looking forward to see कि how you have interpreted it. And
like you said, Revati ma'am. Oh God, I love her. Oh, From she's Love amazing. Days. From Yeah, Love yeah, Days. yeah, So, matlab, she's like childhood girl crush yeah. for me. She was the That's true sweetest. for everyone. I So, think for us also, she's like. yeah, so super excited about that. And what I will do now is, I want to just wish you all the best for Thank you. everything that's coming up. Thank you for speaking to me and Arey, everyone who joined today. thank you for Uh, calling me for this interview. Yeah, of and course. last में बस I want to leave everybody with your poem. मुझे उसके Okay. बाद कुछ नहीं बोलना है because I've had the privilege of sitting down and listening to you recite poems, and trust me, everyone who's watching, it's beautiful. You just have to sit down and listen. And after Kuldeep, after you're done, I will not say anything. I'm just going to sign off and we'll Okay. shut it. But whatever, over to you. ठीक है, ठीक है. तो I'll Just just say कि हर एक एज एन आर्टिस्ट और हर एक कोई भी कुछ भी करना चाहता है ना लाइफ में, उसको एक डिजायर होता है, और डिजायर में अगर मैडनेस ऐड कर दो तो तलब होती है. तलब उसका परफेक्ट वर्ड है दैट मुझे ये अर्ज हो रहा है कुछ करने का. सो मुझे आपके लीप ऑफ फेथ से ही एक पोएम है जो मैं सोच रहा था कि इसमें यूज कर सकते हैं, तो मैं उसी को यूज करता हूँ. तलब, डिजायर एक तरह से बोलते हैं आप उसको, तो मैं तलब रिसाइट करता हूँ आप सब लोगों के लिए. एंड ओके, तलब. ये है मेरी तलब, ये है मेरी तलब, बस मेरी तलब. न दबी है न दबेगी, न रुकी है न रुकेगी. न दबी है न दबेगी, न रुकी है न रुकेगी. ये दौड़ती है निरंतर, बस खोजती है रास्ता. फूटेगी या फोड़ेगी जो पड़ा तेरा वास्ता. ये है मेरी तलब. लगी है, जगी है, सुलगती है हर लम्हा. बुझी है ना बुझेगी ये, तू बुझा के देख ले अगर तुझे है सुबह. मतलब अगर तेरे को शक है तो तू बुझा के देख ले. दिशा कभी ये छोड़े ना, मुखी अपना मोड़े ना. बेलगाम घोड़े सी है पर मार्ग पथ को तोड़े ना. दिशा कभी ये छोड़े ना, मुखी अपना मोड़े ना. बेलगाम घोड़े सी है पर मार्ग पथ को तोड़े ना. लगे हैं बांधने समूह समाज के, सोच से अलग उनके नियमों के परे. कौन है ये जो उतरती है हलक से और ना ही ऊपर चढ़े. ये है मेरी तलब. सांस तो अटकेगा, माथा भी उनका ठनकेगा. सांस तो अटकेगा, माथा उनका ठनकेगा. कोहराम वो मचाएंगे, सड़कों पर भी आएंगे, पर ये रुकी है कब, ये झुकी है कब. लग गई जो एक बार, अब तो होगी पारंपार. आई है ठान के करेगी पूरी जिद को अब. आई है ठान के करेगी पूरी जिद को अब. ये है मेरी तलब, ये है मेरी तलब. तलब है, बस तलब. थैंक यू. Thank you so much once again, Kuldeep, and thank you everybody. I'm just leaving you with talab. I hope ये आप सबके मन में भी कोई तलब जगाए and you find something to run after and some purpose Thank to you. chase. Lots of love to you all. Thank you. And Lots of thank love. you. Thank you, Shwini. Bye. Bye.